called Once More to the Lake. यानी कि he is going to go to the lake, but it's once more. He is revisiting this place. He is going to take a look at it again after a lot of years. यहाँ पे इनकी वो पूरी की पूरी जर्नी है कि because so many years have already passed. So जो writer है he is in a struggle कि ये place अभी भी वैसा का वैसा ही होगा, filled with natural beauty, an environment that was clean, या फिर वक्त के साथ साथ पोल्यूशन की वजह से बेसिकली ये प्लेस कितना ज़्यादा स्पॉइल हो चुका होगा. So before we head towards the chapter, let's take a look at the writer's introduction that you can find at the end of your books. You all know that already. Elvin Brooks White. He was born in 1899 and he died in 1985. He was an American writer. He was the author of several highly popular books for children. यानी कि एल्विन ब्रुक्स वाइट की popularity is not solely on travelogues and stuff, बल्कि actually he was more famous as a children book writer, children's story writer के तौर पर. ठीक है. और इनकी one of the most famous books which I'm pretty sure you people must have heard about, Stuart Little, which also ended up becoming a very popular movie as well, Charlotte's Web as well, then Trumpet of Swan. All of these are some of the most remarkably written children's storybooks and are still regarded as landmarks in English literature. In addition का मतलब है इसके अलावा he was a writer and a contributing editor to the New Yorker magazine. It's still going on in America, this magazine, and he was working there as a contributing editor. He also have co-authored an English language style guide which was called The Elements of Style. It's also regarded as a very comprehensive book for language. E.B. White published his first article in the New Yorker in 1925. When he was working in the magazine, it was in 1925 that he ended up publishing his first article in. He joined the staff, yani कि as an actual full member of the New Yorker magazine. He joined that magazine in 1927. And continued to contribute for the next 6 decades. एक decade में होते हैं 10 years, तो 6 decades का मतलब 60 years. Well, that's a long career. In the late 1930s, White turned his hand to the children's fiction. 1930s से पहले he wasn't writing much about children's fiction, but 1930 के बाद he ended up writing some of the most famous children's books. उसी में से इनकी जो his first children's book, Stuart Little, was the first book he wrote for the children. It was published in 1945 and ended up becoming the bestseller. It was continued by Charlotte's Web in 1952. This book also ended up becoming a bestseller and is still considered as one of the most popular books and one of the most greatest books written for the children in English literature. So this was the author's introduction. और आपके अगर हम पेपर की स्पेसिफिकली बात करें तो पेपर के अंदर ऑथर की बायोग्राफी क्वेश्चन आंसर्स में नहीं आती है, but they can ask you to write a few lines about him, and more specifically they will ask you about him in the MCQ section regarding maybe his famous books or which magazine he worked for, something like that. Let's focus on the essay, because आपकी बुक में ऐसे का but here we will try to get a very brief introduction of the essay. Once More to the Lake is an essay first published in Harper's Magazine. E.B. White used to write for different magazines. New Yorker is the one which we read about, but here we have another magazine, Harper's Magazine, जिसमें उन्होंने essay publish किया in 1941. After that, it chronicles his pilgrimage. Pilgrimage का word holds a lot of importance here, because pilgrimage is regarded as a journey which is taken for religious purposes. That's what pilgrimage is, right? अब यहाँ पे he is going to a lake as a vacation, during his vacations. तो यहाँ पे pilgrimage का लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा लिखा हुआ, but actually why is he calling this a pilgrimage? क्योंकि इस जगह से इन लेक्स को विज़िट करने के बाद what he gets is calmness, what he gets is peacefulness, and what he gets is tranquility. And this is everything which we get after we worship, या हम कोई इबादत करते हैं तब यही सब कुछ हमें हासिल होता है.
तो वो उस प्लेस को भी ऐसे ही कंसिडर करते हैं बिकॉज इट गिव्स हिम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड कामनेस. तो ही इज़ कॉलिंग दिस रीविजिट बेसिकली एज अ पिलग्रिमेज. ठीक है. अब ये जा कहाँ रहे हैं, ये एक लेक्स बनी हुई हैं. उन लेक्स का नाम है बेलग्रेड लेक्स और ये अमेरिका के शहर मेन के अंदर है. ठीक है. एंड दिस इज़ द प्लेस ही इज़ विजिटिंग नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स. ही यूज्ड टू कम हियर रेगुलरली व्हेन ही वाज लिटिल और अब एज अ ग्रोन मैन ही इज़ कमिंग हियर. In Once More to the Lake, White revisits his ideal boyhood vacation spot. Ideal vacation spot का मतलब है कि here are a lot of activities. जिसमें hiking होगी, boating होगी, या maybe just outdoors sports होंगे because that's what usually boys want. While he initially finds joy in his visit, यानी कि शुरू में जब आते हैं तो everything is making him happy because it's the same place, the same boats, the same mountains, the same sunset. But then suddenly memories hit him. That's what happens. So nostalgia, यानी कि जो past की memories का flow है, he now struggles to remember कि he is now a man. He somehow has this belief या फिर fantasy around him कि वो दोबारा पलट के पास में चले गए. And that makes him believe कि इनके पास ये अपने फादर में कन्वर्ट हो गए हैं और जो इनके साथ इनका बेटा आया हुआ है उसके अंदर ये खुद चले गए. यानी कि ही थिंक्स कि प्रेजेंट अभी कुछ भी नहीं है एंड ही हैज़ ट्रांसपोर्टेड हिमसेल्फ इनटू द पास्ट. तो यहाँ पे दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेमोरीज, स्ट्रगल्स और फिर साथ में लोनलीनेस वक्त के साथ साथ बिकॉज दैट्स व्हाट यू अल्टीमेटली फील व्हेन यू आर अलोन. दिस इज़ ऑल दिस essay, दिस travelogue इज़ अबाउट. स्टार्ट करते हैं इसको. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दे हैव गिवन अस टू पिक्चर्स. The one on the left side is a picture which is very beautiful, very calming, full of natural beauty. But on the right side we have a picture that is not so charming to the eyes. And why? Because of a lot of dirt, a lot of rubbish, a lot of pollution. We can all see the water is disgusting. None of us would want to even go near that. But why this happens? As years pass by, pollution happens, infrastructure starts to happen. और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से टेंशन ख़त्म होती है और ये सब कुछ हो जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल इन आवर कंट्री, वी ऑल नो कि कराची में क्लिफ्टन बीच मौजूद है. इट इज़ अ नेचुरल बीच. इट वाज क्लीन वंस अपॉन अ टाइम बट अब वो इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो चुका है कि यू कैन नॉट स्टैंड गोइंग नियर इट. और उसकी वजह क्या है? इंसानों की वजह से. और क्या है? One summer along about 1904, this is the first time he went there. My father rented camp on a lake in Maine. इनके फादर ने एक कैंप रेंट किया था कि रहने की जगह मेन यानी कि उन लेक्स के पास जो कि मेन में थी. And he took us there for a month. 1 महीने के लिए अगस्त के वेकेशंस में ये लोग गए, समर वेकेशंस में. Except for some minor inconveniences. Inconveniences को हम आसान ज़बान में कह सकते हैं आपको आने वाली मुश्किलात या फिर हम कह सकते हैं आपको आने वाले ट्रबल्स. तो जब भी हम किसी नई जगह वेकेशंस पे जाते हैं वी आर बाउंड टू रन इनटू सम ट्रबल्स. कुछ भी हो सकते हैं. तो कहने कुछ छोटे मोटे मसलों के अलावा ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ. दिस वेकेशन वाज अ सक्सेस. बड़ा मज़ा आया हम सबको. फ्रॉम देन ऑन नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वाज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक. यानी कि उसके बाद इनके घर वालों को इतना अच्छा लगा कि दे वांटेड टू गो देयर अगेन एंड अगेन. इनके नज़दीक इस लेक से ज़्यादा खूबसूरत जगह इस दुनिया में कोई थी नहीं. इतना ज़्यादा पसंद आया सबको. वी रिटर्न समर आफ्टर समर, इसीलिए हर वेकेशंस में आते हैं. अगस्त फर्स्ट पूरा महीना रहती है वेकेशंस की. और कह रहे हैं कि फिर अ फ्यू वीक्स अगो, ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि हम आते थे फादर के साथ, पूरा महीना स्पेंड करते थे. नाउ ही हिमसेल्फ इज़ अ फादर और इनके अपने फादर मोस्ट प्रोबेबली हैज़ डाइड. तो कह रहे हैं कुछ हफ्ते पहले ये फीलिंग दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग हुई उन लेक्स की, उन एक्टिविटीज़ की, उन मेमोरीज़ की. तो कह रहे हैं कि आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स. फ़िशिंग की ये मेन स्पॉट है. तो कह रहे हैं हमने भी फैसला किया कि अब हम सालों बाद यहाँ ज़रूर जाएंगे. फ़िशिंग हुक्स, फ़िशिंग करने के लिए डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. उसमें से फ़िशिंग हुक इन्होंने लिया, स्पिनर लिया. इन तमाम चीज़ों को लेके ये चले गए 1 वीक के लिए रहने को ताकि उस रीविज़िट कर सकें उस पुरानी जगह. बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस ही यूज़ टू गो देयर एवरी ईयर विद हिज फैमिली. तो जाहिर है इस जगह से इनकी फीलिंग्स भी ख़ास एसोसिएटेड हैं. एंड नाउ ही इज़ रिटर्निंग बैक फॉर अ वीक विद हिज सन. I took along my son who had never had any fresh water up his nose. Fresh water का मतलब होता है all the water resources जो कि naturally exist करती हैं.
अब यहाँ पे फ्रेश वाटर का मतलब ये होगा कि इनका जो बेटा है ही इज़ंट वेरी एडवेंचरस में भी, या फिर ही हैज़न्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स, तभी वो कभी किसी फ्रेश वाटर के अंदर स्विमिंग वगैरह नहीं किए उसका, ठीक है। एंड हु हैड सीन लिली पैच ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज़, यानी कि लिली पैच जो पानी के अंदर लगने वाले खूबसूरत से पौधे होते हैं वो भी सिर्फ बाहर से देखा है, यानी कि ही हैज़ नेवर डन एनी ऑफ द आउटडोरिश स्टफ। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक आई बिगेन टू वंडर वॉट इट वुड बी लाइक। लेकिन कह रहे हैं कि जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की उस लेक पे जाने के लिए, तो इनके दिमाग में ख्याल बार बार आने लगा। आई बिगेन टू वंडर, यानी कि एक ही चीज़ थी जो कि बार बार ये सोच रहे थे, और वो क्या था, व्हाट इट वुड बी लाइक, अब वो जगह कैसी हो चुकी होगी। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मार्ड दिस यूनिक ब्यूटिफुल स्पॉट। मार्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम किसी चीज़ को स्पॉइल कर दें, उसको गंदा कर दें, उसको ख़राब कर दें। तो इनको भी यही फेयर था कि इतना ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, a lot of activity must have been going on there, तो किस किस तरीके से वो जगह स्पॉइल हो गई होगी, वो इस बारे में ये सोच रहे थे। अब इनको आहिस्ते आहिस्ते वो तमाम चीज़ें याद आती जा रही हैं। दिस ब्यूटीफुल स्पॉट, द शेल्टर्ड बे, द स्ट्रीम्स, द हिल्स, द सनसेट, द कैंप्स, यानी कि हर एक्टिविटी और हर चीज़ जो वहाँ मौजूद थी, ही कैन रिमेंबर एवरीथिंग वेरी क्लियरली। आई वॉज श्योर दैट द टैरेड रोड वुड हैव फाउंड इट आउट। अब टैरेड रोड का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो कि जो आपकी रोड बाहर बनी हुई हमें नज़र आ रही होती है वो ब्लैक मटेरियल से बनी हुई होती है, उस मटेरियल को बेसिकली टार कहा जाता है। तो टैरेड रोड का भी मतलब है उसी पत्थर की बनी हुई जो रोड होगी ब्लैक मटेरियल की, टैरेड मतलब मेड अप ऑफ टार, वो यकीनन उस जगह के अंदर तक पहुंच गई होगी। पहले वो नेचुरल पाथवे था, लेकिन अब उन्होंने उसको वक्त के साथ साथ इनोवेशन के नाम पे वहाँ सड़कें वगैरह बना दी होंगी अंदर तक। और कह रहे हैं कि आई वंडर्ड इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डिसोलेटेड, और कह रहे हैं कि मैं यही सोच रहा था कि और किस किस तरीक़ों से, या इस रोड के अलावा और ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ इंसानों ने की होंगी जिसकी वजह से ये जो इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा जो ये जगह थी वो अब डिसोलेट हो गया होगा। और यहाँ पे एक और वर्ड हमारे पास है डिसोलेट, इसका मतलब आई थिंक पीपल कैन गेस, क्योंकि हमने ऊपर भी इसी तरह का एक और वर्ड पढ़ा था। डिसोलेट का मतलब भी होता है बुरा, मिजरेबल भी आप कह सकते हैं, यानी कि इट जस्ट मीन्स समथिंग दैट्स गॉन रियली बैड, ठीक है। तो हम इसको मिजरेबल लिख देते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट। अब आगे वो अलग बात कह रहे हैं कि इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब व गरीब सी बात है। ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, वो बात, पाथवेज, कैंप, सनसेट, यानी कि ही उनको सब कुछ याद है सालों बाद भी। तो उसी बात के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत अजीब सी बात है, हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट। कह रहे हैं कि अगर हम अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो ये बहुत अजीब व गरीब सी बात है कि जो चीज़ें हमें लगता है हम भूल भी गए हैं वो भी पलट आपके दिमाग में वापस आ जाती हैं, राइट। क्या लिखा है, वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रूव्स, यानी कि जब आप अपने आप को उन रास्तों पे, उन मेमोरीज़ के ऊपर लेके जाएं जो कि आपको पास्ट में लेके जाती हैं, तो एक के बाद एक आपको पूरा मंजर सामने आ जाता है। यू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट सडनली माइंड ऑफ अनदर थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक साइकिल। आई गेस आई रिमेंबर द क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्लियर मुझे क्या याद था, अर्ली मॉर्निंग्स मुझे याद है, जब लेक बिल्कुल कूल होती थी, ठंडी और मोशनलेस, यानी कि ना बड़ी बड़ी सी वेव्स, ना डूबने का ख़तरा, बिल्कुल कोई उसमें मोशन, कोई मूवमेंट ही नहीं होती थी। रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ लंबर। लंबर होती है लकड़ी, लकड़ी को बोलते हैं लंबर, ख़ास किस्म की लकड़ी होती है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी जो ये कैंप्स बने हुए होते थे लोगों के रहने के, वो किससे बने हुए होते थे, लंबर, लकड़ी के बने हुए होते थे, वेट वुड्स के। और उसका जो सेंट है, जो उसकी खुशबू थी, वो हर जगह फैली हुई होती थी। लकड़ी की अपनी खुशबू होती है, राइट। तो सेंट का मतलब जो उसकी स्मेल, जो उसकी खुशबू थी, इट वुड बी एवरीवेयर जब भी वो लोग सुबह उठते थे। कैंप्स के बीच में जो पार्टीशंस है, जो सेपरेट करने के लिए रूम्स थे, वो पार्टीशंस कोई बहुत लंबे लंबे नहीं थे, बल्कि आप समझें कि हाफ हाइट के बराबर होंगे कमरे की, और बहुत थिन से थे। तो यहाँ पे कुछ काम करें आप तो वहाँ वालों को भी आवाज़ जाए, वहाँ पे कोई काम करे आपको भी आवाज़ जाए। तो कह रहे हैं इसीलिए वेन एवर ही वुड वेक अप इन द मॉर्निंग ही वुड ड्रेस अप सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब बहुत आराम से, बहुत कामली, ताकि किसी को आवाज़ ना आए, किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंड स्नीक आउट
फर्स्ट आउट एंड स्नीक आउट इन द स्वीट आउटडोर्स। स्नीक आउट का मतलब क्या है कि आप जल्दी से तेज़ी से बाहर निकल जाएं, किसी को कोई आपको पकड़ ना सके, आप बस। After recalling his memories, he is saying that the lake had never been what you would call a wild lake. वाइल्ड लेक का मतलब है कि एक वाइल्ड जगह कैसी होती है जहाँ पे आपको फूड, शेल्टर, सब कुछ, हर फैसिलिटी आपको खुद हासिल करनी पड़े, कुछ मौजूद ना हो फैसिलिटीज़ वहाँ पे, राइट। तो कह रहे हैं कि ये लेक कभी भी ऐसी नहीं थी वाइल्ड लेक का आपको अपने लिए घर बनाना पड़े, कहीं जाके खाना ढूंढ के लाना पड़े, ऐसा कभी भी नहीं था। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स। स्प्रिंकल्ड का मतलब है फैले हुए, स्कैटर्ड। तो पूरे के पूरे शोर जो किनारा था उसके हर तरफ ये छोटे छोटे कॉटेजेस फैले हुए थे, जहाँ पे आके जो आपके टूरिस्ट थे, जो आपके विजिटर्स थे, वो आके वहाँ पे रुकते थे और रहते थे। एंड इट वॉज इन फार्मिंग। इट वॉज इन फार्मिंग का मतलब है कि इवन यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मिंग भी हो रही थी। फार्मिंग का मतलब है खेती बाड़ी। तो जो आसपास के फार्मर्स थे, एक तो उन्होंने कुछ कॉटेजेस को ख़रीदा हुआ भी था ताकि वो उनको रेंट पे दे सकें, और फिर वो कुछ एरियाज़ में फार्मिंग भी कर रहे थे। द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड, यानी कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ वन थिंग इज़ ऑल्सो मैंशनिंग कि वो जो शोर था, जो किनारा था, जो साहिल था, वो हैवीली वुडेड भी था, यानी कि वहाँ पे अच्छा खासा जंगल, घना जंगल। हैवीली वुडेड का मतलब है घने जंगल भी मौजूद थे, लेकिन स्टिल इट वॉज नॉट अ वाइल्ड लेक क्योंकि यू हैड ऑल द फैसिलिटीज़। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स। यू वुड लिव एट द कॉटेज एंड देन यू वुड गो ईट एट द फार्म हाउस। यानी कि आप लोग, ये इनकी लोगों की प्रैक्टिस क्या थी कि ये लोग कॉटेजेस में रात गुजारते थे, रहते वहते थे, वहाँ पे आराम करते थे, और जब मील्स लेने का टाइम था, खाना लेने का टाइम होता था, तो वे वुड दे वुड गो टू द फार्म हाउस। ठीक है, दैट्स व्हाट आवर फैमिली डिड। यानी कि कह रहे हैं कि एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट वी डिड। हो सकता है बाकी लोग कुछ और करते हैं, बट इन लोगों की प्रैक्टिस क्या थी कि जब आराम करना है तो शोर के ऊपर, कैंप्स के अंदर, और जब इन लोगों को जाके कुछ मील्स खानी है, कुछ खाना खाना है, देन दे वुड रिटर्न बैक टू देयर, दे वुड गो टू द फार्म हाउस टू डू दैट। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई वॉज राइट अबाउट द टार, यानी कि जो इन्हें एक शक था, जो इन्हें एक सस्पिशन था कि मे बी द टैरेट रोड वुड हैव फाउंड इट्स वे, वही हुआ। इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल, यानी कि शोर के हाफ अ माइल तक उन्होंने रोड ये बना दी थी। When I got back there, कह रहे हैं जब मैं वहाँ पहुँचा अपने भाई के साथ, वी सेटल्ड का मतलब है हम एक कैंप के अंदर जाके रहे, फार्म हाउस के करीब ही। एंड कह रहे हैं इन टू द काइंड ऑफ समर टाइम आई हैड नोन, यानी कि इट वाज समर टाइम, ये वही वेकेशन थी, वही छुट्टियों का वक्त था जो कि मैं पहले गुजारता था। आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रेटी मच द सेम, यानी कि कह रहे हैं कि मुझे पता था कि हर चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी। प्रेटी मच द सेम, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हैड बीन बिफोर, पहले था। I began to sustain the illusion that he was I. कहने कि I began to sustain this illusion, यानी कि मुझे ये illusion का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि रियलिटी में मौजूद ना हो, यानी कि it's something जो कि सिर्फ आपके माइंड का धोखा हो। हम इसे फैंटेसी भी कह सकते हैं, हम इसे डिसेप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि he was I, he का मतलब है समझते कि जो मेरे फादर हैं वो मुझ में कन्वर्ट हो गए हैं और मैं अपने फादर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉर्ट ऑफ कि इनका साथ इनका बेटा मौजूद था, तो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे में कन्वर्ट हो गया था और जो मेरे फादर थे वो मुझ में कन्वर्ट हो गए थे। एक सिंपल ट्रांसपोजिशन के साथ। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि हम तब्दील कर दें एक को दूसरे चीज़ से, और कह रहे हैं कि मैं तब्दील हो गया अपने फादर में और मेरा बेटा तब्दील हो गया मुझ के अंदर, ठीक है। लेकिन दिस वॉज एन इल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब है कि इट वॉज जस्ट अ फैंटेसी। सस्टेन का मतलब है अपने साथ साथ मेंटेन रखना, और कह रहे हैं कि दिस सेंसेशन, ये फीलिंग परसिस्टेड, इट कंटिन्यूड विद मी, केप्ट क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम। जब तक हम वहाँ रहे उस वक्त तक ये फीलिंग साथ साथ मेरे रही। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग बट इन द सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर। कह रहे हैं कि ये पहला वक्त नहीं था कि मुझे फ़ील हो कि भाई मेरे फादर चले गए हैं और अब मैं अपने फादर में चला गया हूँ, मेरे पास भी मेरा बेटा आ गया, इट्स बेसिकली द सेम थिंग जो कि इनके फादर के साथ थी। लेकिन कह रहे हैं कि इस जगह पे, इस सेटिंग में, उन मेमोरीज़ के साथ साथ ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस। डुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही वक्त में दो एग्जिस्टेंस, दो बेसिकली पर्सनालिटीज़ में जी रहा हूँ, या दो इंसानों के बीच में जी रहा हूँ, ये हमें कहना चाहिए, ठीक है।
आई वुड बी इन द मिडल ऑफ अ सिंपल एक्ट, यानी कि एक रैंडम सा मामूली सा काम कर रहा, और फिर क्या होगा, अचानक से द मेमोरीज वुड कम बैक। और वो सिंपल से काम भी क्या, पिकिंग अप अ बेट बॉक्स। बेट का मतलब होता है शिकार पकड़ने के लिए जो आप जाल बिछाते हैं उसे बेट कहते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी फिशिंग रॉड्स के एंड के ऊपर हम कुछ ना कुछ लगाते हैं, ऐसी चीज़ जिसको मछलियाँ खाती हैं, और फिर हम उसे पकड़ लेते हैं। तो बेट बॉक्स का मतलब उन्हीं चीज़ों को मैंने जब उठाया तो मुझे एकदम मेमोरीज लगा कि मेरे फादर ये काम कर रहे हैं। टेबल फोक रख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, सडनली एक रैंडम से काम के दौरान ही आई वुड फील कि इट वुड बी नॉट आई, कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे फादर ये सब कुछ कर रहे हैं। Who was saying the words और making the gesture। gesture का मतलब होता है मूवमेंट्स, कुछ करना। तो कह रहे हैं कि वो एक्शन मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरे फादर कर रहे हैं। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन। क्रीपी का मतलब है कि बहुत अच्छी सी नहीं बल्कि अ लिटिल बिट स्केरी, अ लिटिल बिट स्ट्रेंज। ठीक है, अब खैर प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं कि वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग। पहले दिन अपने बेटे के साथ फिशिंग करने के लिए गए, और कह रहे हैं कि मुझे हर चीज़ सेम लग रही थी। द सेम डैम्प मॉस। मॉस का मतलब होता है जो प्लांट होते हैं, काई जो होती है बेसिकली, उसे कह रहे हैं कि बेट कैन के चारों तरफ मुझे बिल्कुल लगा कि वैसा ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात जो उनके पास में लेके चली गई, जिसने उनको ये शो करवाया कि नथिंग इज़ चेंज, वो एक ड्रैगन फ्लाई का आना था। और ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके अंदर थोड़ी सी रोशनी भी होती है, चमकता है वो रोशनी में। तो कह रहे हैं कि वो ड्रैगन फ्लाई जो था वो आके हमारी फिशिंग रॉड की टिप के ऊपर बैठ गया अचानक से। और ये सब पहले भी इनके साथ हो चुका था। कब? जब ही वुड कम विद हिज ओन फादर। और कह रहे हैं कि इट होवर्ड। होवर्ड का मतलब होता है कि आप इस हवा के अंदर मौजूद हों, यानी कि आप ज़मीन से ना हो, ज़मीन के ऊपर या पानी के ऊपर हवा में मौजूद था वो। और कह रहे हैं कि इट वॉज देयर। और कह रहे हैं कि इस ड्रैगन फ्लाई के अराइवल, इसके आने के बाद मैं कन्विंस हो गया किसी भी डाउट के बग़ैर, यानी कि आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि एवरीथिंग वॉज एज इट ऑलवेज हैड बीन, कि हर चीज़ वैसे ही थी जैसे कि पहले थी। That the years were a mirage। मिराज का मतलब है कि they were just a fantasy, they were just an illusion। असल में कुछ भी नहीं हुआ था ये, कि 5 साल गुजरे हों या मैं तब्दील हुआ। कह रहे थे कि it was a mirage। मिराज का मतलब होता है कि it's a fantasy, that nothing has changed, nothing has passed। He thought कि जो गुजरे हुए साल हैं वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक illusion में गुजरे हैं, वो सिर्फ एक ख्वाब से गुजरे हैं। And there had been no years। और असल में कोई साल गुजरा ही नहीं है। The small waves were the same। लेक के अंदर वेव्स भी वैसे ही थी। चकिंग द रोबोट। चकिंग द रोबोट यानी कि जैसे वो आके टकरा रही थी बोट से, वो भी बिल्कुल सेम एक्शन था। एंड द बोट वाज द सेम बोट। हैरत की बात क्या है कि कह रहे हैं कि वो कश्ती भी बिल्कुल वही कश्ती थी, यानी कि द बोट ही यूज्ड टू सिट इन विद हिज ओन फादर व्हेन दे वुड गो फिशिंग। कह रहे हैं कि वो बोट बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन इज कि कश्ती कैसी है सेम, तो वो यहाँ आगे मेंशन करें द सेम कलर ग्रीन, उसी ग्रीन कलर की कश्ती थी वो। द रिब्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस। रिब्स का मतलब है हम सबको पता है उसका कश्ती होती है, उसका फ्रेम होता है। जब अब आप कभी बोट के अंदर बैठें तो वी कैन एक्चुअली सी द फ्रेम, राइट, कि वहाँ लकड़ियाँ अंदर का उसका पूरा फ्रेम नज़र आ रहा होता है। तो कह रहे हैं कि वो फ्रेम, वो जो रिब्स थी वो भी सेम जगह से टूटी हुई थी। दैट्स वाई ही थॉट कि मे बी इट इज़ एक्चुअली द सेम बोट बिकॉज ऑफ दोज फीलिंग एंड नॉस्टैल्जिया। एंड अंडर द फ्लोर बोट्स द सेम फ्रेश वाटर लीविंग्स एंड डिब्री। और कह रहे हैं कि जो कश्ती के अंदर थोड़ा पानी के साथ कचरा वगैरह आ जाता है या फिर जो शेल्स वगैरह जो पौधे आ जाते थे, कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल सेम लग रहे थे। वी कॉट 2 फिश। इन लोगों ने 2 मछलियाँ पकड़ी। व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच। और कह रहे हैं कि लंच पे जाने से पहले हम एक दफ़ा फिर से आए स्विमिंग करने के लिए। तो कह रहे हैं हैरत की बात यह थी द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट, यानी कि लेक जिस हालत में हम छोड़ के गए थे अभी भी बिल्कुल वैसी थी। अगर आप समंदर के साहिल के ऊपर अपना कुछ रख के चले जाएं तो द ओशन, द सी जस्ट टेक्स इट विद इट। लेकिन यहाँ पे लेक बिल्कुल ऐसी थी कि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, यानी कि बिल्कुल उतना ही पानी पीछे था जितना पहले था। ब्रीज़ का भी बिल्कुल हल्की सी ब्रीज़ फील हो रही थी, ज़्यादा कुछ ठंडी हवा फील भी नहीं हो रही थी। दिस सीम्ड एन अटरली इंचेंटेड सी। इंचेंटेड का मतलब होता है अंडर दी स्पेल, जब आपके ऊपर कोई पढ़ के फूंक दे और आप उस स्पेल के अंदर आ जाएं, यू नो, सॉर्ट ऑफ अ मैजिक कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और क्यों ये उसको बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा समंदर जो कि एकदम रुक गया, तो मतलब आपने जादू पढ़ के कुछ फूंक दिया उसके ऊपर कि वो एक जगह रुक के बैठ गया। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ मेटाफोर। दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स। कह रहे हैं आप अपनी चीज़ों को, डिवाइस मतलब अपने सामान को आप यहाँ छोड़ के भी चले जाएँ तो भी कहीं नहीं जाएगा। देन यू गो डू योर वर्क, और आप वापस लेके आएँ तो वहीं पे मौजूद होगा।
क्योंकि द लेक हैज डज नॉट स्टर, हिलती भी नहीं है, स्टर का मतलब हिलती भी नहीं है। दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ वाटर का मतलब है कि ये एक ऐसा है पानी का रिजर्वोयर जो कि ट्रस्ट वर्दी, जिसके आप भरोसा कर सकते हैं। अ shoal ऑफ फिश स्वैम बाय, कह रहे हैं जब हम ये बोटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, एक मछलियों का एक ग्रुप स्विम करता हुआ गया, और क्योंकि धूप थी तो उन सब के शेडो पड़ रहे थे, तो इट फेल्ट लाइक कि वो सब डबल नंबर्स में स्विम करती हुई जा रही हैं। और सो क्लियर एंड शार्प, बिल्कुल क्लियर पानी और बिल्कुल सूरज की रोशनी में साफ खूबसूरत सा मंजर नज़र आ रहा था ये। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कह रहे हैं कुछ बाकी लोग भी स्विमिंग कर रहे थे जो वहाँ मौजूद थे। और वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, केक ऑफ सोप का मतलब नहीं है कि आपने सोप का केक बना के ले आ गए, बल्कि केक ऑफ सोप का मतलब है बार ऑफ सोप। हमने सबने देखा है कि जो साबुन होता है एक बार की शक्ल में होता है, तो केक का मतलब वो बार। एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल का मतलब होता है कि जिसका आपको वेट ही फील ना हो, यानी कि समथिंग दैट हैज़ गॉट नो वेट। कह रहे हैं कि ये पानी भी बिल्कुल ऐसा हल्का सा लग रहा था कि जैसे इसका कोई वज़न ही नहीं है, फील ही नहीं हो रहा कि कोई चीज़ मौजूद भी है। देयर हैड बीन पीस गुडनेस एंड जॉलिटी, आप कह रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा था इन्हें, पीस यानी कि सुकून, गुडनेस अच्छाई, और जॉलिटी का मतलब खुशी। और इस वजह से ही हम इसे पिलग्रिमेज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको कोई नेक काम करने से मिलती हैं, वर्शिपिंग करने से, पिलग्रिमेज से। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग, कह रहे हैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे अब ख़राब हो गई थी, अब गलत थी, और वो क्या थी? वो थी साउंड ऑफ द प्लेस, इस जगह से आने वाली अजीब सी अनफेमिलियर आवाज़। और वो किसकी थी? वो आउटबोर्ड मोटर्स की थी। आउटबोर्ड बेसिकली इंजन का नाम है, मोटर बोट के पास इंजन्स लगे हुए होते हैं, और आउटबोर्ड इंजन्स हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, आवाज़ भी ज़्यादा होती है। दिस वॉज द नोट दैट जैड वन थिंग दैट वॉज समथिंग ब्रेक। जैड का मतलब क्या है? अगेन स्पॉइल कर देना, बुरा कर देना। तो कह रहे हैं कि यही एक आवाज़ थी जिसने इस इतने प्यारे एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ स्पॉइल कर दिया। दिस वॉज द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन, जो इल्यूजन उनके दिमाग में थी कि मैं पास में चला गया हूँ, उसको ब्रेक क्या करी थी? यही आवाज़ बार बार करी थी अलार्म की तरह कि नहीं भाई, आप प्रेजेंट में मौजूद हैं और आप पास्ट आपका सिर्फ एक फैंटेसी है जो आप सोच रहे हैं। इन दोज अदर समर टाइम्स, कह रहे हैं पुराने ज़माने में जब हम यहाँ आते थे, ऑल मोटर्स वर इन बोर्ड। इन बोर्ड का मतलब है दे ऑल हैड स्मॉलर टाइनी इंजन्स, जो कि इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट उनकी आवाज़ भी इतनी ज़ोर की नहीं थी। सही है, तो दे वर स्मॉलर इंजन्स, जिसकी वजह से आवाज़ कम थी, बिकॉज दे वर नॉट दैट पावरफुल और बिग। When they were at a little distance, the noise they made was a sedative. और कह रहे हैं उस ज़माने में जो छोटे इंजन वाली बोट्स थी, इनकी जो आवाज़ थी वो एक सेडेटिव साउंड थी। सेडेटिव का मतलब है कामिंग, जो कि आपको सुकून दे। एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, इंग्रेडिएंट मतलब ऐसी आवाज़ जो कि आपको नींद में लेके चले जाए। सो इट वॉज एक्चुअली पीसफुल विद द इन बोर्ड मोटर्स, लेकिन अब क्योंकि आउटबोर्ड आ गई हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। देवर 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, देखें इंजन कितने छोटे से हैं, 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर खाली, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक। द वन लंजर्स थ्रॉब्ड एंड फ्लटर्ड, थ्रॉब्ड एंड फ्लटर का मतलब है कि जो 1 सिलेंडर वाली बोट्स थी वो सिर्फ थ्रॉब और फ्लटर करती थी, जो ट्विन सिलेंडर्स वाली थी वो पर्ड मोशन में या फिर पर्ड की आवाज़ करके चलती थी। देयर वाज अ क्वाइट साउंड, और ये दोनों आवाज़ें खामोशी कितनी हल्की थी, सुकून की थी। बट नाउ द कैंपर्स हैड आउटबोर्ड्स, यानी कि अब सारे के सारे कैंपर्स के पास आउटबोर्ड बड़े इंजन वाली थी बोट्स। इन द डे टाइम इन द हॉट मॉर्निंग्स दे मेड अ पिट्यूलेंट साउंड। पिट्यूलेंट का मतलब इरिटेटिंग, यानी कि ऐसी आवाज़ आती थी इन बड़े इंजन की बोट से कि वो आपको तंग करके रख दे, अनॉय करके रख दे। और रात के वक्त स्टिल इवनिंग में जब ये आवाज़ें आती थी तो ऐसा लगता था कि दे वाइंड अबाउट वंस एयर लाइक मॉस्कीटो। वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, और कंप्लेन कैसे करना? एक मॉस्कीटो, एक मच्छर की तरह की आवाज़ निकालना, जो कि ऑब्वियसली नॉन ऑफ अस एंजॉय, वी ऑल हेट इट। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप। तो कह रहे हैं इन दो चीज़ों, इस चीज़ के अलावा हमारे कैंप के बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, पूरा वीक। द सन शोन एंडलेसली, पूरे समर सीजन में सन भी आया, अच्छे से मौसम रहा। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट, सुबह की एक्टिविटीज़ के बाद रात में जब दे वुड कम, बिल्कुल टायर्ड होते थे और फिर वो लेटते ही सो जाते थे। इन द एक्यूमिलेटेड हीट, एक्यूमिलेटेड का बेसिकली मतलब होता है एक साथ, एक्यूमिलेशन, यानी कि जब हमने पढ़ा था कि कैंप्स के अंदर पार्टीशंस भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे पार्टीशंस थे, तो जब सब लोग आके वहाँ लेटते थे तो सबकी जो हीट होती थी इट वुड कंबाइन टुगेदर, और उस हीट में ये लोग सब सो जाते थे फिर बैठ के।
द स्मेल ऑफ द स्वाम्प, स्वाम्प का मतलब है जो पानी था, जो लेक थी, वो ड्रिफ्ट का मतलब होता है उड़ती उड़ती हवा के साथ यहाँ पे भी आती थी, और इट वॉज अनदर इंग्रेडिएंट जो कि इनको नींद की वादी में ले जाए। स्लीप वुड कम ईजिली, आराम से सोते थे दिन भर के थके हारे, और मॉर्निंग जब होती थी तो इत्तेफाक की बात थी, एक रेड स्क्विरल थी जिसने रूटीन बना ली थी कि वो हमेशा सुबह के वक्त रूफ़ पे आके जहाँ से वहाँ भागने लगती थी। अब क्योंकि रूफ़ कैंप की थी तो ज़ाहिर है उसके भागने की आवाज़ टैपिंग साउंड आती थी, तो वो एक इनके लिए अलार्म क्लॉक भी बन गया था अच्छा सा। आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरी थिंग लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग्स, और कह रहे हैं जब सुबह मैं उठता था तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें मुझे याद आती थी अपने पास की, क्योंकि मॉर्निंग्स ही रिमेंबर्स द मोस्ट क्लियर अबाउट। तो कहने सुबह सुबह जब भी मैं उठ जाता था तो ही वुड फील नॉस्टैल्जिक, ही वुड फील लोनली, क्योंकि अब जाहिर है कि कोई भी इनके साथ नहीं है, ना इनके फादर ना इनके सिबलिंग्स, कोई भी नहीं, जगह बिल्कुल वैसे ही है, एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन कौन नहीं है साथ में, वो लोग नहीं हैं, तो ही वुड फील वेरी लोनली एज वेल। लेकिन दिस इज़ व्हाट द होल चैप्टर इज़ अबाउट। इट्स नॉट जस्ट कि वो जगह कैसे चेंज हुई, इट्स नॉट जस्ट कि मेमोरीज आ रही हैं, बल्कि द मैसेज हियर ऑल्सो इज़ कि इन आवर लाइव्स वी टेंड टू थिंक कि शायद हम अकेली ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मोर्टैलिटी हिट्स अस इन द फेस एंड देन वी रियलाइज़ कि वी नीड अदर पीपल्स अराउंड अस, और जब हम उन्हें खो देते हैं दैट्स व्हेन वी एक्चुअली फील कि वो लोग कितने इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल थे। And the author somehow is feeling that too. Now he's feeling alone and he's remembering everything, that's making him even more sad. ठीक है? I hope the chapter is clear to everyone. We'll inshallah be doing the comprehension very soon as well. जब तक अपना ख्याल रखिए. Ask me questions in the comment section or reach out to me in the phone number that I've added.